Good evening, children. Welcome to Wiser Academy. This is Abhinandan sir, and let us finish the chapter Chemical Equations and Reactions and solve some questions of NCERT. So, without getting late, let's get started. So, let us begin with question number 1. What exactly is question number 1? Question number 1 is saying which of the following statements about the reaction below are incorrect. Okay, so we have been given a chemical reaction, and let us see what are the statements related to this reaction is correct. Okay, what is the chemical reaction? It is given in the book. 2PbO plus C gives rise to 2Pb plus CO2. This is the chemical reaction. Okay. So what are the states in the chemical reaction? This is solid state. This is also solid state. This is also solid state. And this goes to the gaseous state. So the question is, which of the following statements are correct? So what is the first statement which we are getting? Lead is getting reduced. Lead is getting reduced. This is the first statement which we are getting. Now let us see whether it is correct or not. Lead is getting reduced मतलब पहले क्या था? lead oxide था. ठीक है, then it is getting reduced to lead मतलब there is loss of oxygen. Okay, so there is loss of oxygen, so I can say that this statement is true. Lead is getting reduced. Option B. Carbon dioxide is getting oxidized. Carbon dioxide is getting oxidized. So the question is कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? एग्जैक्टली कार्बन था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसका मतलब देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हियर, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. Second option. Carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized. Carbon is not getting oxidized. Carbon डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऑक्सीडाइज होके बन रहा है. सो वी कैनॉट से दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. नो, कार्बन इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, next is lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. बात वहीं आ जाती है कि भाई साहब lead oxide is getting reduced का मतलब क्या होता है कि lead oxide यहाँ पर रिएक्टेंट का क्या ऑक्साइड बन रहा है या रिड्यूस हो रहा है? नहीं. द क्वेश्चन इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या प्रोडक्ट अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो वो हम एक साथ लिख सकते हैं.
या तो मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये मैं एक साथ लिख सकता हूं, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि lead is getting reduced and carbon dioxide is getting oxidized. प्रोडक्ट वाइज, रिएक्टेंट वाइज अलग है, ठीक है। लेकिन हम जब मतलब रिएक्शन की बात करते हैं कि कौन सा रिड्यूस्ड है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है, इस केस में हम प्रोडक्ट को ही मेंशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो हमें क्या मिला करेक्ट ऑप्शन? यहां पर करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4 में था कि ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, या फिर ऑल। तो ऑल तो नहीं होगा, ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. So let us move on to question number 2. Question number 2. Question number 2 है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, the above reaction is an example of a dash, ठीक है। रिएक्शन क्या है देख लीजिए, Fe2O3 plus 2Al leads to Al2O3 plus 2Fe. This is the chemical reaction which we are getting. Now the question is कि भाई साहब ये क्या रिएक्शन है? It is an example of what reaction? I've told it in my previous class when we were discussing about different types of reaction. याद होगा आप लोगों को, मैंने वैसा वो ग्राफ बनाया था in my previous video. Sorry, मैंने वो माइंड मैप बनाया था. There are 5 types of chemical reactions and combination, displacement, double displacement, decomposition, रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शंस मैंने आप बताया था लास्ट क्लास में. तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं कि ये है आयरन ऑक्साइड, ये है एल्यूमिनियम, और प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं क्या क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये है आयरन. ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भाई साहब ये कौन सा प्रकार का केमिकल रिएक्शन है. यहां वी आर सीइंग दैट आयरन ऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. रिएक्टेंट इज आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज प्रोडक्ट. तो हमें ये पता चल रहा है कि आयरन की जगह पर एल्यूमिनियम को लगाया गया, आयरन की जगह पर एल्यूमिनियम को लगाया गया और आयरन क्या रह गया, बाहर रह गया. ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि भाई कौन सा प्रकार का, एक डिस्प्लेसमेंट लग रहा है हमें. आयरन, एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन को छोड़ दिया. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिंगल displacement reaction. ठीक है, this is a example of single displacement reaction. ध्यान रहेगा सबको, single displacement reaction. ये हमने क्वेश्चन देख के जान लिया. अब ऑप्शन क्या क्या है देखिए, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, इसके बाद में डीकॉम्पोजिशन है और ऑप्शन चौथा है
प्लेन डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. Next comes no reaction takes place, या फिर iron salt and water are produced. ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई साहब कि आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? स्टेट क्या क्या है भाई साहब का? है सॉलिड स्टेट, ये है डाइल्यूट तो होगा एक्वयस स्टेट। हमें याद है कि एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है, हम क्लास 8 में भी पढ़े हैं, हम क्लास 7 में भी पढ़े हैं कि जब एसिड से रिएक्ट करता है आयरन या कोई मेटल तो हमेशा बनाता है उसका मेटेलिक सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाटर के अंदर में है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। आयरन तो वैसे ही आयोनिक फॉर्म में है, तो इसके केस में क्या होगा? एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बनाएगा आयरन क्लोराइड। अब पूछा जाए कि भाई साहब आयरन क्लोराइड का फुल फॉर्मूला FeCl2 कैसे हुआ? क्लोराइड का है -1, आयरन का है +2, तो 2 आ जाएगा क्लोराइड के नीचे और 1 आ जाएगा आयरन के नीचे, तो बन गया ये FeCl2 प्लस बचा क्या? H2। H2 is hydrogen gas which will come out. This is gaseous form, this is again aqueous form। क्योंकि डाइल्यूट है इसलिए ये एक्वायस फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, विच इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेरे ख्याल से क्लियर है अभी तक सबको? समझ में आ गया कि क्या रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा, सॉरी क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. What is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? तो इसका एक बढ़िया आंसर मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, फिर मैं लिखवा देता हूं कि आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट शुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बराबर करने के लिए हम बैलेंस करते हैं और उस इक्वेशन को बोला जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे according to the law of conservation of mass, mass can neither be created
nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. The number of atoms of reactants and products should be equal. Should be equal. Hence, we have to balance the number of atoms by multiplying with simple whole numbers. Simple whole numbers, so that their numbers are equal. So their numbers are equal. ठीक है? I hope that is clear to you. Moving on to the next question. Question number 5. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. बहुत बढ़िया. आओ पहला इक्वेशन, पहला रिएक्शन स्टेटमेंट. हाइड्रोजन गैस, सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia. ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया. काफी इजी है, काफी इजी है. कैसे? टू फॉर्म अमोनिया. हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस N2 बिकॉज अगेन इट इज अ गैसियस स्टेट. और एमोनिया का फॉर्मूला है NH3. ठीक है, NH3 है. तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया इक्वेशन लिखो. हमने इक्वेशन लिख दिया. दिस इज द इक्वेशन. नाउ हाउ टू बैलेंस इट. तो मैंने यहाँ पे 3 है तो लगा दिया 2, यहाँ 2 है तो मैंने लगा दिया 3. तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, N2. So the number of reactants and products are equal. Next question. Question है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in the air. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide. क्वेश्चन है कि भाई साहब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in the air to give water and sulfur dioxide. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. Now what
कैन बी द करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों को बताया कि भैया याद रखने का कोशिश करिए कंपाउंड्स को, उनके केमिकल फॉर्मूले को, नाम से केमिकल फॉर्मूला बनाना, एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। ठीक है, बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर का मतलब होता है कि भैया आग लग गई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या है? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें बस खाली क्या करना है? बैलेंस करना है। देखा जाए तो ऑक्सीजन का मात्रा यहां पर देखा जाए तो यहां पर है 1 और यहां पर है 2, 3। ठीक है, 3 दिया हुआ है, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट में कितना है? 2। तो क्या किया जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो 6 है, तो यहां पर लगा दिया जाएगा 3। तो ये हो गया 6, है ना। तो अगर यहां 2 दिया हुआ है, यहां पर 1 दिया हुआ है, 3 है, तो 3 हमें 2 या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 3 और ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लगा दो यहां पर, ये हो गया 4, और 2 लगा दो यहां पर, तो ये हो गया 6, क्योंकि 3 है। 3 यहां पर अब हो गए कितने? 4, और ये हो गया 2, 6 बराबर। 2 × 2 4 एंड 4 और यहाँ पर 2 × 1 2, तो 4 + 2 हुआ 6, यहाँ पर हो गया 6। सल्फर का देखिए, यहाँ पर हो गया 2 बिकॉज इट इज 2s। ठीक है, तो 2 × s दैट इज 2s, यहाँ पर है 1s, तो हमने लगा दिया कितना? 2, विच इज 2s। अब भैया हाइड्रोजन का भी गिनती गिन लीजिए। दिस इज 2 × 2 4 and here again it is 2 × 2 4. So this equation is balanced. समझ में हम कैसे एक नंबर मतलब होल नंबर यूज करके वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। दिस इज द सेकेंड बीट। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड बीट। थर्ड रिएक्शन ये है भैया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड and a precipitate of barium sulfate। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। ठीक है,
precipitate of barium sulfate. Now, what exactly is precipitate? Precipitate is just like paneer. If you have seen how paneer is made out of milk, then you can understand what exactly a precipitate looks. Precipitate looks like paneer when it is made from milk. एक पानी का लेयर ऊपर और नीचे पनीर जमता है. जब दूध के ऊपर में हम मिल्क के अंदर जब हम लेमन डालते हैं या नींबू डालते हैं तो पनीर बनता है. एंड पनीर इज नथिंग बट द प्रोटीन ऑफ मिल्क, विच protein and fat of milk which settles down in the presence of any acid. ठीक है. And the water gets separated. Water or any other liquid or oil or the liquid part, it gets separated, and the precipitate is a very you can say soft, but it is a little solid in structure. तो solid का जब settling down होता है, that is known as precipitate. Now the question is, ये precipitate क्यों बोला गया? ये precipitate इसलिए बोला गया so that you have to describe that in the chemical reaction that it is a precipitate. ठीक है. Reactants क्या है? Reactants is barium chloride. तो उसका फॉर्मूला है, बेरियम का है सिंबल Ba, क्लोराइड का है Cl, बेरियम का चार्ज है +2, क्लोराइड का चार्ज है -1, तो -1 आएगा बेरियम के नीचे और +2 जाएगा Cl के नीचे. सो इट विल बिकम BaCl2, विच इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम का है +3, सल्फेट का है -2, तो Al के नीचे आ जाएगा 2, SO4 के नीचे आ जाएगा 3. और ये ब्रैकेट मैंने इसीलिए दिया क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक सबस्क्रिप्ट 4 है. अगर वहां पर कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं. जैसे Cl के नीचे मैंने 2 लिख दिया बिकॉज देयर आर नो मोर सबस्क्रिप्ट्स. ठीक है. तो SO4 एज होल के नीचे है 3. ठीक है. तो Al2 SO4 3 प्लस not plus, sorry, this 2 will react, which will give aluminium chloride, AlCl. aluminium chloride, aluminium का है +3, क्लोराइड का है -1, तो Al के नीचे आएगा -1, Cl के नीचे आएगा 3, which is AlCl3. AlCl3 plus barium sulfate. Ba का है +2, सल्फेट का है -2, तो ये एज सच बन गया बैरियम सल्फेट BaSO4. नो मोर ब्रैकेट्स, नो मोर नंबर्स. ठीक है. दिस इज द केमिकल रिएक्शन. नाउ what do we have to show that this becomes a precipitate? कैसे होगा? हम इसका स्टेट लिखेंगे. This is diluted, so it will be aqueous. Again Al2SO4 is again aqueous because dilute है. AlCl3 is soluble in water, that's why it will also become aqueous. But BaSO4 will be a precipitate, so its state will be solid and an arrow will be down. That shows it will settle down. If there is any gas coming up, like in the previous equation I showed, hydrogen gas, कहाँ गया यार? ये नहीं, प्रोडक्ट में होता है. हाइड्रोजन गैस, इट केम अप. ठीक है. हाइड्रोजन गैस, इट केम अप, एंड इन केस ऑफ प्रेसिपिटेट इट विल गो डाउन. समझ में आया? इन केस ऑफ प्रेसिपिटेट इट विल गो डाउन. Next question. Beat number D. Potassium metal reacts with
water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium, not potassium, it's potassium, reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. So the question, potassium hydroxide reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. सबसे पहली बात, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के. ठीक है, मेटल स्टेट में है तो क्या स्टेट होगा उसका? सॉलिड. रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, gives potassium hydroxide KOH is the chemical formula of potassium hydroxide. कैसे बना? K का है +1, OH का है -1, तो कोई नंबर नहीं आएगा, सीधा लिखा जाएगा KOH. जैसे NaOH वैसे KOH. NaOH is sodium hydroxide and KOH is potassium hydroxide. ठीक है, तो potassium hydroxide plus hydrogen gas comes. तो इसका सिंबल क्या होगा? गैस, और एरो होगा अप. वाटर इज वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, जिसे हम कहते हैं अल्कली, एंड दैट इज अगेन एक्वायस स्टेट. ठीक है, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. ओके, इसको बैलेंस भी करना है, वो आपका टास्क है. बैलेंस कैसे करना है वो आप करेंगे. ठीक है, मैं आप लोगों को इक्वेशन बता दे रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस क्वेश्चन पार्ट इज ओवर, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Balance the following chemical equation. So without getting late, let us balance some chemical equation. Question दिया हुआ है, HNO3 which is nitric acid, HNO3 plus calcium hydroxide gives calcium nitrate plus water. This is a standard double displacement, you can say, or you can say it is a example of neutralization reaction, the perfect reaction between an acid and a base. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. अब फटाफट बैलेंस करते हैं. ठीक है, गिनती शुरू करिए. कैल्शियम कितना है? 1 बराबर. NO3 कितना है? 2, तो यहां पर आ जाए हमको लिखना पड़ेगा 2. हाइड्रोजन हिसाब कर लीजिए, ये है 2 + 2 4, तो यहां पर है 2, तो हमने लगा दिया 2 और बन गया कितना? 4. आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड. एग्जैक्टली, इट इज बैलेंस्ड. ठीक है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहे हैं. बी, मैं नंबर चेंज करने की जगह इंक चेंज कर सकता हूं, तो लिखता हूं मैं क्वेश्चन. चलो इसमें NaOH
plus H2SO4 gives Na2SO4 sodium sulfate plus H2O. अब देखिए यहां पर कितना सोडियम है? 2, तो यहां पर कितना है? 1, तो हमको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 2, ठीक है। सल्फेट है 1, सल्फेट है 1 बराबर। ऑक्सीजन का हिसाब करिए यहां पर, सॉरी हाइड्रोजन का हिसाब करिए, तो ये हो गया 2 और 2 4, यहां पर है 2, तो हम लगा देंगे क्या? 2, सो इट बिकम्स बैलेंस्ड। कुछ नहीं, हम खाली काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, एंड देन वी आर डूइंग इट। सी, थर्ड बिट, NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 AgCl, सॉरी पहले AgCl बनेगा प्लस NaNO3। गिनती गिनिए, Na Cl Cl Ag Ag NO3 NO3, so this is already balanced. This equation is already balanced and we don't need to balance it. फिर भी हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में, the equation is already balanced. आंसर में हमें लिखना पड़ेगा the equation is already balanced, तो हम सही है। नेक्स्ट बीट नंबर D, BaCl2 लिखिए, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 plus HCl, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट एंड दैट इज द रिएक्टेंट। अब गिनती शुरू करिए, Ba Cl2, इधर है Cl, तो आगे में क्या लग जाएगा? 2 लगेगा ना। लो भैया 2 लग गया, ठीक है। तो HCl तो 2 हो गया, यहां पर अब H बचा, H2 2H, so this 2 is added and again it becomes balanced. समझ में आ गया होगा सबको अभी तक? ओके, नेक्स्ट go to question number 7. Let us go to question number 7. Write the balanced chemical equations for the following reaction. ये सब एग्जाम में, ये सब एक्सरसाइज में क्यों दिया पता? यू विल बी, यू कैन से used to, you will be used to the reactions, you will be used to the compounds, you will know the compounds, what are the different compounds present in the chemical lab, in the experiment if we are doing, or any common compounds, that all we know through the exercises, ठीक है। जितने भी कॉमन कंपाउंड्स हैं ये सब हमें पता चलता है जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस वाटर। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक क्लास में आप लोगों को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये प्रॉपर्टी है दैट इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये आप लोग पढ़े होंगे, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। दिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। कैसे? calcium hydroxide. What is the chemical formula of calcium hydroxide? CaOH2. CaOH2 कैसे हुआ ये? कैल्शियम का वैलेंसी है +2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी है -1, इसलिए वो बन गया CaOH2. CaOH2 plus CO2 will give you calcium carbonate CaCO3 plus H2O. CaOH2 plus CO2 will give you CaCO3 plus H2O. ठीक है, तो बैलेंस्ड कैसे होगा? आई थिंक वो बैलेंस्ड ऑलरेडी है। 3 और 1 4 हो गया ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी डोंट नीड टू बैलेंस इट। And this carbon dioxide is in the form of gas. This is aqueous. Now again calcium carbonate is solid in structure and the water is in liquid state. So the chemical reaction is like this. I hope that is clear. This is the first bit. Moving on to the next bit. Second bit. Question है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। What will be the answer? Zinc का सिंबल क्या है? Zn, which is zinc, plus सिल्वर का सिंबल है Ag, नाइट्रेट का सिंबल है NO3. Now silver has the valency 2, nitrate has the valency, silver has the valency 1 and nitrate also has the valency 1. So there will be nothing, AgNO3. इसको थोड़ा पास में मैं लिखता, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, what will be the प्रोडक्ट? जिंक नाइट्रेट। अब सबको पता है कि जिंक का वैलेंसी क्या है? 2, तो NO3 की जगह के NO3 के बगल में क्या लगेगा? 2। नाइट्रेट का है -1, तो जिंक के नीचे कुछ नहीं लगेगा, प्लस सिल्वर का है Ag। बराबर। अब मेरे को बताइए कि भाई साहब क्या ये बैलेंस्ड है? जी नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में है 1 नाइट्रेट और प्रोडक्ट में है 2 नाइट्रेट, तो हम आगे में क्या लगाना पड़ेगा? हमें 2 लगाना पड़ेगा, और सिल्वर के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 सिल्वर नाइट्रेट बन के 1 जिंक नाइट्रेट प्लस 2 सिल्वर अलग हो गया। सो दिस इज नाउ a balanced chemical equation। ठीक है, सी थर्ड बीट। क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड
क्या होगा इसका प्रोडक्ट? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल बी मेकिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड and copper will be out. ठीक है, because aluminium is more reactive than copper. कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? एल्यूमिनियम का सिंबल है Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर का है +2, क्लोराइड का है -1। ये सब हमें ध्यान से अपने आंख बंद करके हम ऑटोमेटिकली, हमें इतना याद होना चाहिए कि हम उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में ही बना लें। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का वैलेंसी है +2, क्लोराइड का वैलेंसी है -1, तो कॉपर का 2 आएगा क्लोराइड के नीचे और क्लोराइड का -1 आएगा कॉपर के नीचे, जो कि कुछ है नहीं, तो इट विल बी CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? +3 और क्लोराइड का है -1, सो क्लोराइड के नीचे आएगा एल्यूमिनियम का वैलेंसी और एल्यूमिनियम के नीचे आएगा क्लोराइड का वैलेंसी, जो कि कुछ है नहीं, तो इट विल बी AlCl3 प्लस कॉपर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बैलेंस्ड है? जी नहीं, ये बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? कॉपर यहां पर है 2 और क्लोराइड यहां पर है 2, लेकिन यहां पर क्लोराइड है 3, तो हम 3 की जगह पर 2 लिखेंगे और 2 की जगह पर 3 लिखेंगे, तो ये हो गया 6। उस हिसाब से एल्यूमिनियम का होना चाहिए 2, तो रिएक्टेंट में हम लिखेंगे 2, और कॉपर का होना चाहिए 3, तो हमने लिखा यहां साइड में 3। अब गिनती गिन लीजिए, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोराइड 6 क्लोराइड और 3 कॉपर 3 कॉपर। नाउ इट इज बैलेंस्ड। आपको समझ में आया बैलेंस कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सॉरी फॉर द स्क्रिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, थोड़ा स्केच पेन की वजह से पतला पतला नहीं लिख पा रहा हूं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट gives rise to again barium sulfate plus potassium chloride। ठीक है, तो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड, बेरियम का होता है वैलेंसी 2, तो +2 -1, तो बन गया ये BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी होता है -2 और पोटेशियम का वैलेंसी है +1। ठीक है, पोटेशियम का वैलेंसी है क्या? +1, तो बन जाएगा K2SO4। क्या बनेगा इधर प्रोडक्ट? BaSO4, क्योंकि बेरियम सल्फेट है, दोनों का वैलेंसी +2 -2 कैंसल्ड, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, दोनों का +1 -1 कैंसल्ड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, पोटेशियम यहां पर है 2, यहां पर है 1, क्लोराइड है 2, यहां पर है 1, सल्फेट है 1, ये भी 1, बेरियम है 1, ये भी 1। बहुत ही धर्म संकट पर
हम पढ़ने से पहले हमें किसने बचा लिया? 2 ने बचा लिया, क्योंकि Cl2 और K2 यहां पर KCl है, तो अगर हम यहां पर आगे में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली K और Cl बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बेरियम और सल्फेट एक एक है. यू सी हियर Ba is 1, SO4 is again 1. So BaSO4 is fine. But here K is 2, Cl is 2. So we have added 2 here. So it has become balanced. Now it is balanced. कोई भी इक्वेशन लिखिए आपके आंसर में, उसको प्लीज बैलेंस करिएगा. एंड इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस, इट्स नॉट अट ऑल डिफिकल्ट प्रोसेस. इसीलिए ये इस तरीके से किया जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Write the balanced chemical equation for the following. Question number 8. Question number 8. ठीक है. Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. ठीक है. In each case, what are the types of chemical reaction in each case? ठीक है, बता देंगे भाई. पहला इक्वेशन, यहां पर वर्ड इक्वेशन दिया है, आपको उसका केमिकल इक्वेशन बनाना है और प्लस आपको यह बताना है कि भैया ये किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. पहला पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड. मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा. एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो सम कंपाउंड्स, टू नो सम कॉमन कंपाउंड्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो बेरियम आयोडाइड will give you potassium iodide plus barium bromide. ये जो ब्रोमाइड के बारे में आप सुन रहे हैं, दैट इज फ्रॉम हेलोजन ग्रुप लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ये सब क्या है? ये सब है हेलोजन ग्रुप. व्हेन यू सी द पीरियोडिक टेबल, you will find the last corner before the inert gases, this long column of highly electronegative non-metal, and which is known as halogen. Halogen का जो ग्रुप है उसमें आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडीन, सॉरी, ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. दिस कम्स इन द ग्रुप 7. सॉरी, नॉट ग्रुप 7, ग्रुप ऑफ पीरियड ना. हाँ, तो ग्रुप 7, ग्रुप 7 में आता है ये सारा. इनका आउटर मोस्ट में रहता है 7, इसीलिए इनका वैलेंसी रहता है -1. इसीलिए फ्लोराइड का वैलेंसी भी -1, क्लोराइड का वैलेंसी भी -1, ब्रोमाइड भी -1, आयोडाइड भी -1. ठीक है. याद रहेगा सबको कि इसका वैलेंसी होता है -1, ब्रोमाइड का वैलेंसी भी -1, आयोडाइड का वैलेंसी भी -1. तो पोटेशियम ब्रोमाइड का आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर है इसका पोटेशियम ब्रोमाइड. K is again
minus is +1, bromide is -1, so no change. प्लस बेरियम का होता है 2, क्योंकि आपको याद होगा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला, ऐसे हम फॉर्मूला से भी वैलेंसी याद कर सकते हैं, हो सकता है हमसे वैलेंसी में गलती हो जाए, लेकिन फॉर्मूला याद करने में तो कभी गलती नहीं होगा. तो अगर बेरियम सल्फेट में BaSO4 है, मतलब Ba का भी चार्ज कितना है, +2 है, और आयोडाइड का है -1, तो इसीलिए ये हो जाएगा BaI2. क्या बन जाएगा ये, BaI2, बिकॉज बेरियम का है वैलेंसी +2, आयोडीन का है -1. प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, अगेन Ki, पोटेशियम आयोडाइड, एंड बेरियम ब्रोमाइड में क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड का है -1 लेकिन बेरियम का क्या है 2, इसीलिए वो बन जाएगा BaBr2, बराबर, BaBr2. हाँ, तो अब क्या किया जाए, अब इसको बैलेंस किया जाए. आयोडीन है 2 और लेकिन यहां पर है 1, इसलिए हमने आगे में क्या लगाना पड़ गया, 2. सिमिलरली पोटेशियम का है यहां पर, रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं यहां पर है 1 लेकिन प्रोडक्ट में है 2, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2. अब गिनती फिर से गिनते हैं, 2K 2Br Br2, Ba Ba, I2 2I. So now the equation is balanced. समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम होल नंबर्स यूज करके इसको हम बैलेंस करते हैं. कमिंग टू सेकेंड बीट. सेकेंड बीट है जिंक कार्बोनेट, zinc carbonate is the reactant, product is zinc oxide plus carbon dioxide. अच्छा, हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था, राइट? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं. Ki2 Ki बन गया और KBr था और Ba2 था, तो ये BaBr बन गया. सो इट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट. द रिएक्शन विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स मेक इट अ लिटिल शॉर्टर वर्जन. सो इट विल बी DD, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहां तो आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि भैया सिंगल रिएक्टेंट है ना. सिंगल रिएक्टेंट का मल्टीपल प्रोडक्ट निकला, तो ये क्या बन गया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डी. और डिस्प्लेसमेंट का हम लिखेंगे SD. SD मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, DD मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, और सिर्फ D मतलब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. याद रखेंगे. इक्वेशन लिखते हैं. जिंक कार्बोनेट, जिंक का है +2, कार्बोनेट का है -2, है ना, क्योंकि कैसे बनता है, H2CO3 बनता है ना. H2CO3 क्या है, कार्बनिक एसिड है. कार्बनिक H के नीचे 2 है, मतलब वैलेंसी कितना होगा उसका, -2. सो द जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3. दिस इज रिएक्टिंग, मतलब इसको डिकम्पोज किया जा रहा है, शायद इसमें हीट हो या कुछ भी हो. जिंक ऑक्साइड, अगेन ऑक्साइड का भी -2, जिंक का भी +2, तो ZnO प्लस CO2. ठीक है. ZnCO3 decomposes to form zinc oxide plus carbon dioxide, and I think it is already balanced. गिन लेते हैं. Zn CCO3 1 + 2 3. Moving on to the third one.
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन will give हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड. कैसे? हाइड्रोजन इज गैस प्लस chlorine is also gas and it will give hydrogen chloride is nothing but hydrochloric acid which is HCl. लेकिन ये है किस स्टेट में? गैस स्टेट में. ये भी है गैस स्टेटमेंट में, ये भी है गैस स्टेट में. अब देखिए H2 प्लस Cl2, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, तो यहां पर 2 लगा दो भाई. 2 मैंने लगाया ब्लू पेन से क्योंकि अलग दिखता है, तो 2 मैंने लगा दिया बैलेंस करके, which led to the formation of hydrochloride gas and it is balanced. ठीक है. Moving on to the next question. Question number D. Magnesium plus hydrochloric acid will give magnesium chloride plus hydrogen. अच्छा, अब आपने बताया नहीं कि भैया यहां पर कौन सा प्रकार का रिएक्शन है ये तो भैया 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, तो ये तो बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मूविंग ऑन टू बीट नंबर डी. बीट नंबर डी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives magnesium chloride plus hydrogen gas. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे इन केमिकल रिएक्शन? बहुत इजी है. मैग्नीशियम का सिंबल है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक का है HCl. प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विच इज H2. ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर Mg is Mg, H is H2 here and Cl is Cl2 here. So what will we add? We will add 2. So it will become balanced. ठीक है, so this equation is again balanced. I hope that is clear. Now अब हो क्या रहा है? Magnesium is replacing hydrogen and forming magnesium chloride. So it will be a single displacement reaction. SD is single displacement reaction. DD is double displacement. ठीक है, HD यहां पर कुछ नहीं है, या DD है, SD है, CD है बस, और R मतलब redox. ठीक है. Moving on to question number 9. क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? गिव एग्जाम्पल्स. तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ाया था जब हम रीडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे. जब हम रीडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, द हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. और जब किसी सराउंडिंग से आप
हीट एब्जॉर्ब करते हो ना, तो आप हो जाते हो ठंडे, या फिर वो सराउंडिंग बन जाएगा ठंडा, इट विल बिकम कोल्ड, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। सब्जी, फ्रूट्स, ये सब हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सब फूड है, और फूड क्या होता है? फूड के अंदर होता है एनर्जी, और वो एनर्जी क्या करता है? धीरे धीरे उस खाने को सड़ाने की कोशिश करता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एक रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जो कि उस सब्जी या फ्रूट या दूध या कोई भी फूड आइटम, उसका जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो वो रेडिएट करता है, उसको वो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर देगा। तो इसीलिए वो एप्पल, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाता है ठंडा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। लिखिए एंडोथर्मिक का डेफिनेशन। एंडोथर्मिक, व्हाट एग्जैक्टली इज endothermic? Write down the reaction in which heat is released, heat is absorbed. Heat is absorbed by the reactants to complete the reaction. मतलब बिना हीट एब्जॉर्ब करे वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स is always less than the energy of product. ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। कैसे? 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2. This is a very popular chemical reaction of photosynthesis which requires sunlight, right? And chlorophyll. This is a very common kind of endothermic chemical reaction. ठीक है, दूसरा है क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लिखिए द रिएक्शन इन विच heat is released, मतलब energy is released with the formation of products. ठीक है, and the energy of the reactant is more than the energy of product. Energy of the reactant is more than the energy of product. Example क्या लिख सकते हो? combustion of methane. मीथेन का कंबस्शन क्या होता है? CH4 is methane plus
O2 will gives rise to CO2 plus H2O plus heat plus light, दोनों निकलते हैं। मीथेन गैस को जब हम जलाते हैं CNG सिलेंडर में, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में, तो इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसको भी बैलेंस कर देते हैं। O2 और यहाँ 2 1 3 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3, यहाँ पर है 2, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O, 4। दो और 2 4, 3 नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा 2, सॉरी, 2 और 2 हो गया 4। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी बैलेंस्ड है। 6H2O 6CO2 will give you 6O2, हाँ ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, समझ में आ गया सबको अभी तक? एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस, प्रोबेबली द लॉन्ग क्वेश्चंस। और अभी तक आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, मेरे क्लासेस अच्छे लगे, मेरी डिलीवरी अच्छी लगी, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, प्लीज़ डू लाइक the video, please do share it with your friends, with your brothers, with your sisters, and just keep posting some good comments or any sort of advice related to the video, and I'll see you all in the next part of this question answer session. Okay, thank you so much. Bye.